we will be talking about synecdoche and metonymy. ठीक है, synecdoche and metonymy. पहले we'll be noting down certain definitions and then we'll be taking a look at the examples that also follow from there. Right. So first of all, synecdoche synecdoche is a figure of speech wherein a part is used, मतलब एक हिस्सा एक पूरी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए या एक पूरी चीज एक हिस्से को डिस्क्राइब करने के लिए ऑल्टरनेटिवली यूज की जाती है, दैट इज नोन एज synecdoche. So is a figure of speech where a part is used to और वाइस वर्सा. ठीक है, वाइस वर्सा यानी होल पार्ट को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, दैट इज synecdoche फॉर यू ऑल. जैसे कि अगर हम कहें कि he had two mouths to feed, उसके पास दो माउथ्स है फीड करने के लिए. यहाँ पे दो माउथ्स का मतलब है दो लोगों का पेट भरना है उस इंसान ने. ठीक है, सो यहाँ पे माउथ्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? माउथ्स आर रिप्रेजेंटिंग पीपल. he has this is referring to two persons. So this is synecdoche for you all. This is synecdoche. ठीक है, Another example of this could be two heads are better than one, यानी कि दो लोग एक जने से better होते हैं. ठीक है, so that is also something which is important. So synecdoche is a part representing whole. Next is metonymy and I'm sure आंचल ने ये cover कराया होगा. Metonymy is a figure of speech wherein you are trying to associate one thing to the name of other thing. ठीक है, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो क्योंकि उनका एक क्लोज एसोसिएशन है आपस में. ठीक है, सो आई नोट डाउन मेटोनिमी हियर ओनली. where the name of one thing is used for another because of a close association एक क्लोज एसोसिएशन की वजह से. ठीक है, बिकॉज ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन. Right, and a very famous example of this is the pen is mightier than the sword. Very famous example of this is oh, यानी कि वो लोग, ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलेक्चुअल लोगों को कि जो समझदार लोग होते हैं, they are better than the ones who just want to argue or brawl about something. ठीक है, जिन लोगों को आर्ग्यू करना है उनसे बढ़िया है, यानी कि बेसिकली इंटेलेक्चुअलिटी या समझदारी इज मोर वैल्यूड देन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड आर मोर important as compared to the people who keep on blabbering about things or brawling with other people. Right, another example of this could be the court issued a summon. अब court
ऑफ कोर्स इज अ बिल्डिंग ओनली, लेकिन उस कोर्ट का मतलब ये है कि जो जुडिशरी का पैनल है, ठीक है, ज्यूरी जो बैठी है, उन्होंने एक सम्मन भेजा है किसी के लिए, ठीक है, सो दैट इज मेटोनिमी बिकॉज द कोर्ट इज एसोसिएटेड विद द ज्यूरी दैट इज देयर, सो हेंस द नेम ऑफ द कोर्ट इज बीइंग यूज्ड। करेक्ट। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज पन, PUN, pun. Now pun is a figure of speech जहाँ पे word play होता है, where multiple meanings of the same word are exploited for poetic or comic effect, are used, लिख लो आप, for poetic और comic effect. Simple manner में pun is a word play. So you can consider here olive you is a pun which tries to state I love you. So you're playing with words. ठीक है? I can't express so how much you mean to me. I can't express how much you mean to me. So the words are being playful here. An elephant's opinion carries a lot of weight. So elephant के opinion को उसके weight के साथ just for the comic effect बोला गया है. और ये भी एक और एग्जाम्पल है कि अ पेसिमिस्ट ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज बी नेगेटिव. जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है, पेसिमिस्ट कहते हैं उसको हम. अ पेसिमिस्टिसिस blood group is always be negative. ठीक है. So again here you are trying to use it for wordplay. Next is euphemism. Next is euphemism. Euphemism एक ऐसी figure of speech होती है बच्चे जहाँ पे आप slightly harsh words होते हैं जो उनको सीधा नहीं बोल सकते. So you try to choose some gentler tones or words. ठीक है. Where an offensive or harsh word is substituted with the milder or less egregious expression. Less offensive ही लिख सकते हैं हम इसको. Where an offensive आप जेंटलर वर्ड्स यूज करते हो. जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग हिज फादर डाइड, तो ये डाइड थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में आ जाता है. यू कैन से हिज फादर पास्ड अवे. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डाइड यू आर सेइंग डाइड की बजाय आप यूज कर रहे हो पास्ड अवे. ठीक है. he is gone, he rests in peace now, his dog was put to rest. ठीक है. his dog was killed, killed को हमने बोल दिया put to rest. his dog was put to rest. So that is there. Note down these. This is euphemism. कहीं पे भी आपको harsh word, आपको लगता है कि यहाँ पे harsh word हो सकता था लेकिन किसी ने softer gentler version यूज करा है, तो वो क्या हो जाता है, वो euphemism हो जाता है. Where opposite ideas are brought together in a sentence for poetic effect.
फॉर अ पोएटिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ही टॉयल्ड ऑल डे एंड रेस्टेड ऑल नाइट, सारा दिन उसने मेहनत करी और रात को सो गया। तो डे एंड नाइट, दीज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस, सो यू कैन नोट देम डाउन। ही टॉयल्ड ऑल डे, तो ये डे एंड नाइट ऑपोजिट वर्ड्स हैं फॉर पोएटिक इफेक्ट एडेड, ठीक है। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। लव तो यहाँ पे आइडियल थिंग को रियल के साथ, जो सोचा है और जो रियलिटी है उसके साथ कंपेयर किया गया है कि प्यार और शादी, प्यार एक आइडियल थिंग है और मैरिज इज अ रियल थिंग, ठीक है। राइट, नेक्स्ट अप वी हैव ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होता है जब आप दो वर्ड्स को, देखो ये एंटीथीसिस से डिफरेंट कैसे, क्योंकि एंटीथीसिस में भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऑक्सीमोरोन में भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एंटीथीसिस? इज एंटीथीसिस के बीच में वर्ड्स आ जाते हैं, आइडियल और रियल के बीच में काफी वर्ड्स हैं। ऑक्सीमोरोन में वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, वट एवर यू आर ट्राइंग टू पोज, दोज टू आइडियाज विल बी टुगेदर, ज्वाइंड और conjoined टुगेदर, ठीक है, वो साथ में जुड़े हुए होंगे। सो नोट दिस डाउन, where two contrasting words conjoined together, एकदम साथ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल darkness visible, deafening silence, loving hate। तो डार्कनेस कैसे विजिबल हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो आइडियाज यहाँ पे, डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस जो है चुप्पी, डेफनिंग यानी कि बोला हम पंजाबी में कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट व्हाट डू वी से इट इन हिंदी, डेफ करने वाली कैसा हो सकता है? साइलेंस, साइलेंस कान की सुनने की शक्ति कैसे खत्म कर सकता है? लविंग हेट, हेट प्यार कैसा हो सकता है और प्यार वाली हेट कैसे हो सकती है? तो जब दो दो ऑपोजिट कंट्रास्टिंग वर्ड साथ में यूज किए जाते हैं फॉर पोएटिक इफेक्ट, तो उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। बिटर स्वीट, सीरियसली जोकिंग, ठीक है, हैवी लाइटनेस, ब्राइट स्मोक, सिक हेल्थ, कोल्ड फायर, ये सारे वर्ड्स जो हैं दीज आर ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अप वी हैव पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है वो चीज जो सरफेस लेवल पे आपको सही नहीं, मतलब इतनी डीप नहीं लग रही, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को बड़ा डीपली एनालाइज या समझने की कोशिश करोगे, फिर ट्राई टू एनालाइज इट अ लिटिल बिट इन डेप्थ, यू विल अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग। दैट इज व्हाट वी मीन बाय पैराडॉक्स, ठीक है। इट्स अ स्टेटमेंट और अ जनरल ट्रूथ, अ स्टेटमेंट और अ जनरल ट्रूथ, or a general truth which may sound absurd or illogical, absurd or illogical, but on a deeper analysis it makes complete sense.
जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ यू से व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लेस इज मोर, जब बोलने की बात आती है तो जितना कम कहो उतना ही इफेक्टिव होता है. दिस इज व्हाट इट मीन. ऑन अ सरफेस लेवल इसको ऐसा लग रहा है कि है कम बोलना कैसे बेनिफिशियल हो सकता है. अगर इसको डीपली समझने की कोशिश करोगे इट मीन्स दैट इफ यू आर यूजिंग लेस वर्ड्स, मेक श्योर those words are so much so emphasized and important and well put कि सामने आपको ज्यादा शब्दों की जरूरत ना पड़े अपनी बात कहने के लिए. ठीक है. लेस इज मोर. ठीक है. अनदर एक विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोएम थी, उसका नाम था रेनबो. आई थिंक रेनबो में एक लाइन आती है, पैराडॉक्सिकल लाइन आती है, उसको कहा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. नाउ दिस लाइन माइट ऑल्सो सीम वेरी फनी और इलॉजिकल टू यू. वैसे तो मैन चाइल्ड का फादर होता है, लेकिन हाउ कम चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. सो हियर इन अगर आप इसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हो, यू गेट टू सी द राइटर मेंट दैट व्हाटएवर द चाइल्ड लर्न्स इन हिज और हर बचपन दैट शेप्स हिम एज एन एडल्ट. यहाँ पे मैन मीन्स एडल्ट. तो जो भी आप बचपन में सीखते हो वही आप बड़े होके बनते हो. दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट हियर. ठीक है. सो दिस इज पैराडॉक्स फॉर यू. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. देखो एलिट्रेशन हमने करा कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना. रेपिटेशन का मतलब है वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होना. ठीक है. सो इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपस में. रेपिटेशन मीन्स where a word or a phrase within a sentence is repeated. Within a sentence is repeated. जैसे for example, I am nobody. Who are you? Are you nobody too? ठीक है. तो ये nobody और nobody repeat होना. Then because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn. If you think you can win, you can win. विलियम हैजलिट नाम के एक रोमांटिक एज के राइटर रहते हैं, वो भी ये लाइन यूज करते हैं. इफ यू थिंक यू कैन विन, कॉमा यू कैन विन. अगर तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो तो तुम जीत सकते हो. तो यू कैन विन रिपीट हुआ है सेंटेंस और अ फ्रेज. ठीक है. सो दिस इज रेपिटेशन. रेपिटेशन में फ्रेजेस या वर्ड्स रिपीट होते हैं. एलिट्रेशन में साउंड्स, शब्दों के पहले शब्द रिपीट होते हैं. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.